Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we will be starting with question number 5 of exercise 14.3. So the name of the chapter is Factorization. Chapter number 14 of class 8. So we were on exercise 14.3. And we have already done question number 1, 2, 3 and question number 4 of this exercise. So now only last question number 5 is left. So let's discuss question number 5 of exercise 14.3. So question number 5 says factorize the expressions and divide them as directed. And divide them as directed. So we have to factorize the expressions also and then we have to divide them also. So we have done these both things. We have done factorization in our previous exercises and we have done division of algebraic expressions as well. So I have an introduction video also for this. So if you haven't watched that video, first go and watch the video so that these questions and these exercises will be very easy for you to solve. So question number 5. First part is y square plus 7y plus 10, y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. Yes. So this is the question. Y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. So now we cannot divide both these expressions. अगर मैं इनको fractional form में भी लिख देती हूँ, so we cannot divide them directly because एक तो ये divide हो भी नहीं रहा है and secondly इसमें से कुछ common भी नहीं आ रहा. ठीक है, y square plus 7y plus 10 में से कुछ भी common नहीं आएगा. So it means we cannot directly divide them. What does this mean? That we have to factorize the expression first. अब ये तो already factorize ही हो रखा है. So we will factorize this expression. Let's see how. We have y square plus 7y plus 10. I told you first हम ये check करेंगे कि identity apply हो रही है या फिर नहीं. So this is y square but 10. अब 10 किसी भी number का square नहीं होता, right? तो 7y को तो अब check कर ही नहीं सकते. 7 भी किसी भी number का square नहीं है. So we know that we have to middle term split this term. 7y को हमें middle term splitting से solve करना है और उसके बाद जो हमारे पास factorize करके जो आएगा, जो हमारा आंसर होगा, that we can divide by this expression. So if I talk about middle term splitting, we know that जो middle में term होती है हम उसको two parts में split करते हैं. That too how कि ये जो 7 है यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट? दिस इज पॉजिटिव 10. सो प्लस करके दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनको प्लस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 1 into 10 आए, राइट? सो इट मीन्स बेसिकली हमें 10 के फैक्टर्स लिखने हैं. ठीक है, 1 into 10 के फैक्टर्स लिखने हैं. सो 2 into 5 and 10 into 1 यही दो फैक्टर्स होते हैं. 5 into 2 10 and 10 into 1 1 into 10 यही दो पेयर्स होते हैं. सो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके 7 आए. सो 10 plus 1 तो 11 होता है, बट येस 5 plus 2 is 7. सो वी गॉट दी नंबर्स. हमारे पास जो 7y है उसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2 और 5y में. अब 2y और 5y को करना है ऐड. इट मीन्स 7y हमारा स्प्लिट हो जाएगा. देखो y स्क्वायर एज इट इज प्लस 10 एज इट इज. अब ये जो 7y है ये हो जाएगा प्लस 2y प्लस 5y. So 2y plus 5y will also give us
7y. सो इट मीन्स हमने स्प्लिटिंग भी करेक्ट की है. सो ऑलवेज रिमेंबर हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर वही आए जो क्वेश्चन में गिवन है. वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन. ओके, सो अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू रीग्रुप. दो के ग्रुप में से कॉमन लेना, बिकॉज चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. राइट, y इन तीनों में है तो इसमें नहीं है. ठीक है, सो दो के ग्रुप में कॉमन लेते हैं. सो y स्क्वायर एंड 2y में से I think y is common because y square is y into y and 2y is 2 into y. Right? So y common आ गया, so बचा y plus 2. ठीक है, plus 5y and 10 में से 5 is common, so we are left with y plus 2 again because 5 2s are 10 होता है. Right? So now again we have the same brackets. Shall I rub this? So I think the middle term splitting part is clear to you now. So now this is y plus 2. दोनों में से कॉमन ले लेते हैं. So we are left with y plus 5. So this is the answer. This is the answer. This is the factorization of this expression. अभी हमने divide तो किया ही नहीं है. Now let's divide. So divide करेंगे अगर हम, तो अब हम इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन. सो y plus 2 y plus 5 अपॉन y plus 5 एज इट इज. ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको तो फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते y plus 5 को. राइट, सो इट मीन्स नाउ अब हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं y, बिकॉज y plus 5 एंड y plus 5 डायरेक्टली कट हो सकता है. I told you children, whenever we have the same bracket, exactly same bracket in numerator and denominator, we can cut them. अब ये दोनों कट हो गए, so our answer comes out to be y plus 2. ये हमारा आंसर है. So when we divide y square plus 7y plus 10 by y plus 5, we'll get y plus 2 as the answer. सो हमें बेसिकली डिवाइड करने के लिए उसको फैक्टराइज करना पड़ा. एंड फैक्टराइज करने के लिए वी नो वी हैव डन 4 मेथड्स. उनमें से किसी एक मेथड से हम फैक्टराइज कर सकते हैं. सो यहाँ पे 3 टर्म्स थी. इट मीन्स देखो, सबसे पहले तो कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन फैक्टर मेथड तो नहीं होगा. सेकेंड, रीग्रुपिंग द टर्म्स. रीग्रुपिंग द टर्म्स में 4 टर्म्स चाहिए होती है. सो इट मीन्स यहाँ पे अगर 3 टर्म्स है तो वो भी नहीं अप्लाई होगा. देन यूजिंग आइडेंटिटीज. यूजिंग आइडेंटिटीज में अब हमें पता है 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है. सो आई डोंट थिंक यहाँ पे यूजिंग द आइडेंटिटीज भी वर्क करेंगी. सो ओनली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वाज लेफ्ट. हमने उससे कर दिया इसको सॉल्व, एंड उससे सॉल्व करके वी गॉट y plus 2 y plus 5. तो अब हम y plus 2 y plus 5 को डिवाइड कर देंगे y plus 5 से. So y plus 5 automatically cut. We are left with y plus 2 and that is the answer. Okay, so this was the first part of question number 5 of exercise 14.3. Okay, so now let's come to the next part. Now coming to second part of question number 5. So the second part of question number 5 is m square minus 14m minus 32 divided by m plus 2. Again we have two expressions and हमें इनको divide करना है, but directly we cannot divide them. First we have to factorize the expression, right? So looking at this expression, ये तो already हम इसको और further factorize नहीं कर सकते. So इस expression को observe करो and common इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा because यहाँ पे we don't have any coefficient and यहाँ पे m नहीं है. So it means common नहीं आ सकता, identity apply नहीं हो सकती because 32 and 14 squares नहीं होते. It means again middle term splitting. So
writing this expression again, m square minus 14m minus 32. So it is clear that हमें 14m को करना है split 14m, right? and ऐसे split करना है कि माइनस करके आना चाहिए 14 and मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 32 into 1 32, राइट? सबसे पहले तो हम 32 के फैक्टर्स लिखते हैं. सो 16 into 2 होता है 32, राइट? एंड 16 into 2 8 into 4, राइट? 8 into 4 8 4 से 32, 4 हो गया 5 6 नहीं 7 8 9, ओके. एंड 32 into 1. तो ये हो गए फैक्टर्स 32 के, ठीक है. अब हमें ये पता है दैट माइनस करके आना चाहिए 14. सो लेट्स चेक माइनस करके 14 किस नंबर से आता है. 16 minus 2 is 14. सो ये फर्स्ट नंबर ही है. 8 plus 4 will give us 12 and 8 minus 4 4, 32 minus 1 31, right? So 16 and 2. अब हमें पता है ये 16 और 2 में स्प्लिट होगा, बट हमें चाहिए माइनस 14m, राइट? हमें वो ही चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है. माइनस 14m गिवन है तो माइनस 14m चाहिए, एंड प्लस 14m गिवन है तो प्लस 14m चाहिए. सो राइट हियर वी आर गिवन माइनस 14m. सो ये हो गया 16m एंड 2m. आप बोलोगे 14m चाहिए तो 16m माइनस 2m कर दो, बट हमें चाहिए माइनस 14m. इट मीन्स जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है उसमें अगर हम माइनस लगा देंगे सो आई थिंक हमारा आंसर माइनस में आएगा. लेट्स सी, अगर दोनों माइनस कर देते हैं तो क्या होता है. माइनस माइनस प्लस. सो 16 plus 2 will give us 18 and not 14. इट मीन्स एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए. अब ये वाला प्लस रख के तो हमने देख लिया था प्लस 14m आ रहा था, ठीक है. अब हम ये वाला प्लस रख के देखते हैं. सो प्लस माइनस माइनस 14m एंड साइन बड़े नंबर का दैट इज माइनस. सो माइनस 14m आ गया, बट वो कैसे आया जब हमने ग्रेटर नंबर में माइनस रखा एंड स्मॉलर नंबर में प्लस रखा. सो ऑलवेज चिल्ड्रन अप्लाई करो सारे साइंस एंड चेक करो कि किससे हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है. सो नाउ वी नो दैट वी विल स्प्लिट माइनस 14m इन माइनस 16m प्लस 2m. सो m square as it is, minus 32b as it is. माइनस 14m स्प्लिट हो जाएगा माइनस 16m प्लस 2m में, ठीक है. एग्जैक्टली जो यहाँ पे स्प्लिट करे वो यहाँ पे लिख दे, राइट? एंड माइनस 14m की जगह पे ये लिखा, बाकी दोनों एज इट इज आए. नाउ वी कैन रीग्रुप द टर्म्स. वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम 2 टर्म्स. देखते हैं कैसे. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. Now m square minus 16m. m square would be m into m and 16m would be 16 का एलसीएम लेते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. So 2 into 2 into 2 into 2 into m, right? So कॉमन तो सिर्फ m ही आ सकता है बिकॉज ऊपर तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं. So it means m is common. So 1m is left minus 16 is left. अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m minus 16, ठीक है. अब देखो हमें m minus 16 चाहिए था, यहाँ पे भी minus 16 बच रहा था तो मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया. बट अगर यहाँ पे कुछ साइन चेंज आ रहा होता है, हमें कुछ और चाहिए होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर देते, ठीक है. सो ये भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से इट डिपेंड्स दैट हमें माइनस साइन कॉमन लेना है या फिर नहीं लेना. सो हियर इट वाज नॉट नेसेसरी, सो आई डिडंट टुक माइनस साइन कॉमन. ओके. So m minus 16, m minus 16. So m minus 16 whole common. So we are left with m plus 2. So this is the answer. अब ये factorization करके आंसर आया है, but अभी हमें करना है divide. We have to divide. Okay. So divide हमें करना है m square minus 14m minus 32. इट मीन्स बेसिकली अब हम m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 के प्लेस पे लिख सकते हैं
पहले तो हम यही लिख देते हैं -14m - 32 अपॉन m + 2, ठीक है। पर अभी ये ऐसे कट नहीं हो सकता, हमने इसको फैक्टराइज करा है। इसको फैक्टराइज करके हमारे पास आ रहा है m - 16 m + 2 अपॉन m + 2। सो बेसिकली व्हेन वी फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन चिल्ड्रन, सो उसके बाद जो वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो उससे कट हो जाता है, राइट। तो आंसर बहुत इजी हो जाता है। तो m + 2 कट and our answer is m - 16. So this is the answer for part number 2. So when we will divide m square minus 14m minus 32 by m plus 2, we will get m minus 16 as the answer. So this was the second part of question number 5. Now proceeding to the third part. Coming to part number 3 now. So the third part of question number 5 is 5p square minus 25p plus 20 divided by p minus 1. So this is our question. Again we have to factorize this expression first. 5p square minus 25p plus 20. So p minus 1. Yes. So children see, अब अभी यहाँ पे p square के साथ 5 है हमारे पास, right? यहाँ पे 25 है and here we have 20. So now we know that हमें 20 into 5 करना पड़ेगा to get our number जिसके हमें factors निकालने हैं। by middle term splitting ही होगा ये भी, right? But उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कुछ common है या फिर नहीं। So in this expression children 5 common है, तो पहले हम 5 को common ले लेते हैं। अब उससे क्या होगा, सी मिडिल टर्म स्प्लिट तो हमें फिर भी करना है, बट उससे क्या होगा, नंबर्स हमारे लिए इजी हो जाएंगे टू स्प्लिट, बिकॉज कॉमन आ जाएगा तो छोटे छोटे नंबर हो जाएंगे। सी आवर एक्सप्रेशन इज 5p square minus 25p plus 20. So in तीनों में से we know that 5 is common. So we are left with p square minus 5 5 से 25 होता है, so 5p plus 5 4 से 20 होता है, ठीक है। So now the expression becomes p square minus 5p plus 4. So middle term split इसका करना ज़्यादा easy रहेगा या फिर इसका करना ज़्यादा easy था? Obviously expression with smaller numbers, okay? So common लेना तो बहुत easy होता है and then we get a expression जो और easy रहेगा हमें solve करना। So अब हम इसको इस expression को solve करेंगे rather than solving this expression, okay? So now 5 as it is and ये हो जाएगा p square भी as it is and plus 4 भी as it is। अब हमें minus 5p को करना है split, so minus 5p को हमें split करना है, that too ऐसे split करना है कि plus करके आना चाहिए 5 and multiply करके आना चाहिए 4, so 1 into 4 4। अब 4 के factors लिखते हैं, so factors of 4 are 2 into 2 and 4 into 1, that's it, ठीक है। अब प्लस करके 5 देखते हैं किस पे आ रहा है, so 2 plus 2 is 4, so no, but yes 4 plus 1 is 5, so 4 and 1, 4p and 1p, ये तो clear है। अब 4p and 1p तो clear है, but we want minus 5p and not plus 5p, so what we can do is children, हमें माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस रख के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो प्लस माइनस माइनस 4 minus 1 3 हो जाएगा, बट वी वांट 5, हमें 4 plus 1 चाहिए, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से भी नहीं आ रहा, सो लेट्स टेक बोथ नेगेटिव, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस, यस 4 plus 1 5 एंड साइन
माइनस का, सो -5p इससे आ रहा है -4p -1p, ठीक है। सो अब हम -5p को स्प्लिट कर देंगे -4p -p, बिकॉज 1 तो हम लिखते ही नहीं है, सो ये हो गया ऐसे स्प्लिट। आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी स्प्लिटेड -5p in two parts, -4p -p, because 1 is not necessary, so -4p -p will give us -5p, ठीक है। सो अब हम इसको फर्दर डी ग्रुप से सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों टर्म्स को में से कॉमन लेते हैं, देन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। ओके, सो shall I rub this? Is it clear how we splitted the term -5p? Now 5 as it is, p square -4p में से हम p कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विथ p -4, ठीक है। अब यहाँ पे p and 4 है, सो नथिंग इज कॉमन। ऑल्सो हमें ये देखना है कि हमें 4 नेगेटिव चाहिए एंड p पॉजिटिव चाहिए, बट यहाँ पे ऑपोजिट है, p नेगेटिव है एंड 4 पॉजिटिव है। सो इट मीन्स एक माइनस का साइन और कॉमन ले लेंगे अगर हम, सो वी विल गेट दी सेम ब्रैकेट। माइनस कॉमन ले लिए, इट मीन्स p हो गया पॉजिटिव एंड 4 हो गया नेगेटिव, सो p -4 p -4 अगेन सेम ब्रैकेट, बिकॉज माइनस साइन कॉमन ले लिया तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए। नाउ p -4 होल कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विथ p -1, और 5 भी हम फॉरगेट नहीं कर सकते, वी ऑलवेज टेक 5 कैरी फॉरवर्ड होगा एज इट इज। ओके, सो नाउ फैक्टराइजेशन के बाद आंसर ये आया है, बट अभी हमें करना है इसको डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हमें बॉटम में हमारे पास है p -1 एंड न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 5p -4 p -1, राइट। सो अगेन p -1 से p -1 कट हो रहा है, सो आवर आंसर इज 5p -4। दिस इज आवर आंसर फॉर पार्ट नंबर 3। सो व्हाट वी डिड, हमने बेसिकली p -4 को एग्जैक्टली लिखा और p -1 कट हो गया, राइट। सेम ब्रैकेट है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, सो वी कैन कट देम। ओके, सो आई होप नाउ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, इट्स जस्ट दैट हमें फैक्टराइज भी करना है एंड देन डिवाइड भी करना है। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट चिल्ड्रन of question number 5, exercise 14.3. Now let's come to part number 4. So the fourth part of question number 5 is 4yz z square plus 6z minus 16 divided by 2y z plus 8. So again we have two expressions जिनको हमें divide करना है, but first we have to फैक्टराइज। अब फैक्टराइज ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो राइटिंग दिस एक्सप्रेशन 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? z स्क्वायर है हमारे पास, 16 स्क्वायर होता है 4 का, राइट। तो 4 स्क्वायर भी हो सकता है, सो a स्क्वायर b स्क्वायर 2a भी हो सकता है, बट एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, राइट। अगर हम कॉमन भी लेंगे माइनस को टू चेंज दी साइंस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स चिल्ड्रन इट्स बेटर कि हम इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करें।
सो सी मिडिल टर्म स्प्लिट होगा 6z का, ठीक है। सो 6z को हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि माइनस करके आना चाहिए 1 into 16, 16, ठीक है। एंड बिकॉज वी हैव 1 हियर, राइट, एंड माइनस करके आना चाहिए 6 एंड मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1 into 6, 16, 1 into 16, 16, ठीक है। सो 16 के फैक्टर्स हो गए 8 into 2, ठीक है, 4 into 4 एंड 16 into 1। अब हमें ये देखना है माइनस करके 6 किस में आएगा। सो यस 8 into 2, 8 minus 2 is 6, so it means 8z and 2z होगा, that too minus का। So 8z minus 2z will give us positive 6z. So 4yz as it is, right, z square as it is minus 16 भी as it is, 6z हो जाएगा plus 8z minus 2z, right। हमने बस 6z को मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, बाकी सब टर्म्स एज इट इज। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ दीज नंबर्स, सो 4yz अगेन एज इट इज, ये हो जाएगा z कॉमन, सो z plus 8, राइट, एंड इधर से माइनस कॉमन एंड 2 कॉमन, सो z अब ये plus 8, y प्लस बिकॉज माइनस कॉमन लिया सो साइन चेंज, ठीक है। so z plus 8, z plus 8, so this is clear to you now। z plus 8, z plus 8 है हमारे पास, ठीक है। so 4yz as it is, z plus 8 whole common, so z minus 2 is left। ये हो गया हमारा फैक्टराइज करके आंसर आ गया, बट अभी हमें करना है डिवाइड। so let's divide 4yz, z plus 8, z minus 2 by 2y, z plus 8, right। so अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, सी z plus 8 से z plus 8 कट, ओके, y से y भी कट एंड 2 से 4 भी कट, so we are left with 2z, z minus 2, so this is the आंसर। मतलब डिवाइड करके हमारे पास आएगा 2z, z minus 2, बिकॉज 4 2 से कट हो गया तो वी आर लेफ्ट विथ 2 एंड y से y कट बिकॉज ये सब ब्रैकेट के बाहर है, सो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं एंड z इज लेफ्ट, सो 2z, z minus 2 is left, so this is the answer for part number 4 of question number 5. I hope this concept is also clear to you now. Okay, so this was the fourth part of question number 5, children. We have done all the 4 parts, 1, 2, 3 and 4, and now the rest 3 parts we'll be discussing in our next video. So stay tuned for that video. In that video we'll be ending up exercise 14.3. Alright, then we'll be starting with our next exercise. So if you have any doubt, any problem in these parts or in any other question, any other exercise that we have discussed in our videos, so most welcome, you can write in our comment section below. Okay, and don't forget to like and share this video. Thank you.